Class 10th. Yesterday we have started the unit electricity. Unit number 1. Electricity के बारे में हमने पढ़ा था. Electricity is defined as the flow of electrons, which is always opposite to the flow of conventional current inside the conductor on applying the potential difference. Now today, after that, we have studied about the electric current and electric charge की properties. I think यहाँ तक हमने कल cover किया था. Now the next topic that comes into this series is Ohm's law. Ohm's law. Ohm's law क्या होता है भाई? किसने दिया था इसको? It was given by जॉर्ज साइमन ओम. साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओम. उसने इस लॉ को दिया था. किसके लिए यूज होता है ये लॉ? दिस लॉ इज यूज्ड टू सॉल्व द सिंपल सर्किट. जो सिंप्लीफाइड सर्किट्स होते हैं, सिंपल सर्किट होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए वी यूज ओम्स लॉ. मोरओवर ओम्स लॉ कहता क्या है स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग through any substance, may be conductor, may be semiconductor. The strength of current flowing through any substance, यहाँ पे conductor लेंगे, is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided that all the physical conditions such as temperature, pressure, etc. remains constant. That is the statement of Ohm's law. Ohm's law क्या है statement? The strength of current flowing through any substance is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided that all the physical conditions such as temperature, pressure remains constant. अगर मैं मैथमेटिकली इसको देखता हूँ, ये क्या कहता है? द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग I is directly proportional to V. अगर मैं करंट के अमाउंट बढ़ाता हूँ, देन किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर मैं करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ तो मुझे उसका पोटेंशियल, उसकी वोल्टेज भी बढ़ानी पड़ेगी. और similarly we can also write this V is directly proportional to I. I mean अगर मैं इसको which implies directly proportional को हटाता हूँ, then there would come a constant, that is इस constant को क्या बोलेंगे? That constant is called resistance. क्या बोलेंगे? That constant is called resistance. तो यहाँ से R क्या हो जाएगा? V by में I. R क्या हो जाएगा? V by में I. यहाँ पे अगर हम देखते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस
defined as the ratio of potential difference applied to the current flowing through the circuit. दोनों का रेशियो V by I का रेशियो जो होगा that is called resistance, and this resistance is, in case of Ohm's law, this resistance is independent of the strength of current flowing across the ends of a conductor. I mean current की strength के ऊपर resistance कभी भी depend नहीं करता because it is a constant quantity. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पीयर. जॉर्ज साइमन ओम ने यूनिट दी रेजिस्टेंस की ओम, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, आंद्रे मैरी एम्पीयर ने इलेक्ट्रिक करंट की एम्पीयर. तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 ओम क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज said to be 1 ohm when 1 ampere of current flows across the ends of a conductor on applying the potential difference of 1 volt. Hope so you may get this point. Once more I am repeating the definition of 1 ohm. क्या होती है भाई, 1 ohm is defined as resistance of a conductor is said to be 1 ohm when 1 ampere of current flows across the ends of a conductor on applying the potential difference of 1 volt. Now अगर मैं बीकर यूनिट की बात करता हूँ, इसका सिंबल क्या हो जाएगा ओम का, लाइक दैट. तो बीकर यूनिट क्या हो जाएगी, 1 किलो ओम, आई मीन 10 रेज़ टू द पावर 3 ओम, और 1 मेगा ओम 10 रेज़ टू द पावर 6 ओम. तो यहाँ से रेजिस्टेंस की अगर मैं डेफिनेशन बताना चाहूँ तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस is the property of a resistor. resistor क्या है, एक कंपोनेंट है, एक डिवाइस है जो करंट के फ्लो को रोकता है. इसी when we fit that device into any electrical component. तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टर which opposes the flow of electric current. Like as on road there are speed breakers. स्पीड ब्रेकर्स क्या करते हैं, जो व्हीकल की स्पीड है उसको कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं. सिमिलरली इन एनी कंपोनेंट, सिमिलरली इन एनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो रेजिस्टेंस का रोल होता है दैट इज सिमिलर टू लाइक एज दैट ऑफ स्पीड ब्रेकर. इट आल्सो रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. तो यहाँ से क्या डेफिनेशन बताई, रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए रेजिस्टर व्हिच opposes the flow of electric current. Moreover, how the resistances are connected into any component, into any circuit. It can be connected in series, it can be connected in parallel. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल. अगर सीरीज और पैरेलल के अंदर हम देखेंगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन तो क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हमें ध्यान रखनी है, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट would always remains same across the ends of a conductor or any wire whatever be vary क्या करता है, that is potential difference. potential difference vary करेगा, करंट क्या रहेगा, same रहेगा. moreover in case of parallel combination,
कॉम्बिनेशन क्या होगा, जो मेरा करंट है वो क्या होगा, दैट वुड बी फ्लोज अक्रॉस different wires and the potential है that would remain same, I mean common. तो now one by one हम, अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लें मेरे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3 which are connected across the ends of the wire. In case of series combination, the resultant is R1 plus R2 plus R3, तीनों को सिंपली ऐड करेंगे. और इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में अगर यही तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल के अंदर कनेक्ट हों तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 plus R1 R3. These two results are solved by using expressions of the combination of resistances in series and parallel. Now we will see the expression of combination of resistance in series and in parallel. Hope so you are getting my point. Now next topic is combination of resistance in series. Let us consider three resistances which are connected across the ends of a wire shown below. यहाँ हमें दिखाई दे रहा है एक वायर है जिसके दो टर्मिनल हैं A एंड B. यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट है, R2 कनेक्ट है और R3 कनेक्ट है. When the current starts flowing through this wire, तो इस टर्मिनल के अक्रॉस जो मेरा करंट है वो कितना फ्लो करेगा, दैट वुड बी I1, इसके अक्रॉस I2, इसके अक्रॉस I3 एंड फाइनली क्या मिलेगा हमें, I ही मिलेगा. तो यहाँ से और जो पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा और इसके अक्रॉस V3 होगा. अभी बताया था इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या बताया था, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट ऑलवेज रिमेन्स सेम. करंट क्या रहेगा, मान लिया हमने I1 I2 I3 सब इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, I के इक्वल होंगे. और जो पोटेंशियल है V1 V2 V3 वो क्या होंगे, तीनों का जो सम होगा I दे आर नॉट इक्वल, तीनों का सम किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अभी पढ़ा था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मूव किया था तो V इज इक्वल टू क्या मिला था, RI. तो अक्रॉस दिस सर्किट, अगर मैं फर्स्ट सर्किट के अक्रॉस बात करता हूँ तो इसके अक्रॉस V1 क्या हो जाएगा, R1 into I1, और I तो I के बराबर है. सेकंड V2 किसके बराबर हो जाएगा, R2 into में I2, और I2 तो I के बराबर है एंड V3 किसके बराबर हो जाएगा, R3 I3. लाइक दैट V1 R1 I1, R1 I1 तो I के इक्वल है, R2 I2 तो I के इक्वल है, R3 I3 तो I के इक्वल है. इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. ऑन एडिंग equation 1, 2 and 3 on both sides, we get, हमें क्या मिलेगा, V1 plus V2 plus V3 is equal to I, हमें कॉमन दिखाई दे रहा है तीनों के अंदर, R1
R2 R3। और आपको एक चीज यहाँ से समझ में आ रही है कि ये जो तीनों हैं V1 V2 V3 जो पोटेंशियल तीनों का सम किसके बराबर आया था, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा, दैट वुड बी इक्वल टू V। और जो रेजिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि सारे क्या हैं डिफरेंट। इसको मैं नीचे ले आऊंगा, I नीचे आ जाएगा, V बाय I क्या होता है, यहाँ से देखो इस I को नीचे ले आओ तो किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर। हमने पढ़ा था उस फ्लो में कि रेजिस्टेंस क्या है, ये कांस्टेंट है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये किसके अंदर कनेक्ट है, सारे सीरीज में। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R1 plus R2 plus R3। These are the two resistances which are connected in series. Moreover, अगर मैं यहाँ नोट में एक चीज क्लियर कर देता हूँ, if all the resistances are of equal value, मान लिया मैंने सबकी वैल्यू क्या है, R की इक्वल है। मान लीजिए 2 ओम का है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो ये क्या है 2 ओम का ही होगा। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n इंटू में R। आई मीन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, n की वैल्यू यहाँ क्या है 3 है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगा 3 इंटू में R। If all the resistances are of similar value, that is the combination of resistances in series. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Combination of resistances in parallel। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस in parallel के अंदर हम कहेंगे in parallel combination। Let us consider three resistances which are connected across the ends of three wires shown in the figure. Here something there is a potential difference which is common to all. When the current starts flowing across one end, then it will be distributed like that, I1, I2, I3 across the different wires। वायर 1 के अंदर I1 करंट फ्लो करेगा, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट है, R2 and R3 and potential is common। That is the again here there are basically three resistances which are connected in parallel, and in each wire the current I1, I2, I3 flows। This current is divided by this node। इस वायर के क्रॉस I1 गया, इस वायर के क्रॉस I2 and इस वायर के क्रॉस I3। पोटेंशियल क्या है मेरा कॉमन है। आई मीन वैसे तो इसके क्रॉस V1 V2 V3 बट ये क्या है V के इक्वल है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने क्या पढ़ा था अभी कि जो मेरा पोटेंशियल है V1 V2 V3 वो सब क्या है दैट इज इक्वल, बट जो करंट है वो क्या है वो इक्वल नहीं है। देयरफॉर तीनों का जो सम होगा तभी मुझे फाइनली यहाँ पे जाके क्या मिलेगा आउटपुट में, क्या मिलेगा आउटपुट करंट I। इनकमिंग I था तो आउटपुट करंट भी I होना चाहिए। देयरफॉर अगेन according to Ohm's law we all know that V किसके बराबर होता है R के बराबर होता है। I किसके बराबर हो जाएगा V by R के बराबर हो जाएगा।
अगर मैं फर्स्ट सर्किट की बात करता हूँ, फर्स्ट वायर की बात करता हूँ, तो फर्स्ट वायर के अंदर मेरा जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I1 है, पोटेंशियल V1 है, रेजिस्टेंस R1 है, बट हियर द पोटेंशियल इज कॉमन, V1 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू V। सिमिलरली I2, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, I2 क्या हो जाएगा, V2 बाय में R2, V2 तो V के इक्वल है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। एंड I3 क्या कहता है, रेशियो ऑफ V3 बाय में R3, आई मीन V3 तो V के इक्वल है, V बाय R3, इक्वेशन नंबर 3। ऑन एडिंग, अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो हमें क्या मिलेगा, I1 plus I2 plus I3, here V is common in all the equations, therefore 1 by R1, अंदर क्या बच गया, 1 by R2 और 1 by R3, और ये तीनों का सम किसके इक्वल है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दैट इज इक्वल टू I। तो 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, इस B को नीचे ले आएंगे, B को नीचे ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 by RP, तो 1 by RP क्या आया, 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, that is the required formula of resistance when they are connected in parallel। अगर मेरे रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर कनेक्ट हैं, then the required formula is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। I mean we can say that सीरीज के अंदर मेरा जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। आई मीन करंट का जो फ्लो है मैक्सिमम कहाँ होगा, पैरेलल के अंदर, मिनिमम कहाँ होगा, करंट का फ्लो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। इसकी मॉडिफाइड फॉर्म में ऐसे भी ले सकता हूँ भाई, 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3 था, इसका एलसीएम ले लो, R1, R2, R3, इसको इससे डिवाइड करो, R2, R3, इसको इससे डिवाइड करो, R1, R3, इसको इससे डिवाइड करो, R1, R2, ये क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 1 by RP, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल इसका भी आ जाएगा। ये हम एडिशन का केस है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। R1, R3, that is the modified form of combination of resistance in parallel। नोट के अंदर हम क्या लिखेंगे, if all the resistances are of similar value, if all the resistances are of similar value, say equal to VR, then resistance in parallel क्या हो जाएगा, R into R into R, यही करके देख लो, R into R, R into R, R into R, I mean R cube divided by में R square, R square, R square, resistance in parallel, R cube divided by में 3R square, this two this cancel, I mean R by 3। तो यहाँ से जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R by N, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R by N। ये R by 3 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं वो कितने हैं, N is equal to 3, इसलिए आ गया that is equal to R by 3। therefore अगर मुझे रेशियो निकालना है, if all the resistances are of similar value, I mean R1, R2, R3 is equal to R, सब की वैल्यू अगर इक्वल है तो इनका जो रेशियो निकालेंगे सीरीज और पैरेलल के अंदर, if there are n resistances then what would be the ratio, रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या था, R, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का क्या आया था, R by N, R से R कैंसिल, N by 1 by N,
n by 1 by n, rs by rp square, which is the required relation.